Vikrant Pranam, a very good afternoon to one and all. I am Bhavna Lakhani on behalf of Vikrant Group of Institutions. Welcome you all to this startup-based webinar series Udan. Vikrant College always promotes students to think, innovate and transform themselves and take this world to the new heights. And thus we established Vikrant Incubation Center. Under this incubation center, we are organizing startup idea competition in which you all are invited. Participants can come up with new idea and showcase their creativity. You can present your idea, model or any prototype. The very first exciting prize is funding, which will be given to the best idea or model that will support the near future. The second and third prize is the cash prize of 3,000 and 2,000 rupees respectively. The last date of registration is 26th December 2020. Please register yourself as soon as possible. Don't let go this opportunity. For more information, you can contact to the given number and visit our website mentioned in the poster. Now, moving towards the session today, we have an eminent personality who is co-founder and chief marketing officer of Multiplexer Labs Private Limited and Auto Park Technological Services Private Limited. He has done his BTech in Electronics and Communication. Since college days, he, with his friends, started new security company IEE, which was later changed to Multiplexer. He is our speaker of the day, Mr. Abhimanyu Yadav. To welcome him, I would like to invite Dr. Sandeep Shukla, Assistant Managing Director, Vikrant Group of Institutions, who been always supportive for student welfare. He has guided so many students under Incubation Center. It's my privilege to invite Dr. Sandeep Shukla sir to welcome our guest, Mr. Abhimanyu sir. Thank you. Good afternoon, everyone. First of all, I heartily welcome to Mr. Abhimanyu Yadav, sir. And sir, our student is very eager to listen your today's session. That is startup ideas and difficulties in fundraising. I think ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर. बच्चों के पास आइडियाज काफी सारे होते हैं, नई नई चीजें उनको खोजने में बड़ा मजा आता है. उन्हें ये नहीं पता होता है कि उसको स्टार्टअप को मूर्त रूप कैसे देना है, आगे कैसे लेके जाना है, फंड राइज कैसे करना है. मैं आशा करता हूं कि आज के इस सेशन में बच्चे बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं. आई थिंक यू आर द वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट पर्सन फॉर गाइडिंग देम इन स्टार्टअप फॉर स्टूडेंट. तो आई थिंक आने वाला सेशन 1 घंटे का चलने वाला है, उसमें बच्चे बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल. ओवर टू भावना. थैंक यू. Thank you so much, sir, for the greetings. It's my time to call a person who always thinks that learning is key to success and experience. He has got various funding. He has many subsidiary companies as well as like Crazy Route, Parking Lot Vehicle Management, Visitor Verification Software. He is currently working on project Kolkata Smart Project. He has done several projects and now become technocrats.
It's my honor to invite and welcome speaker of this session, Mr. Abhimanyu Yadav sir. थैंक यू मैम। और सभी को मेरा बहुत नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट किया जाए और प्लस स्टार्टअप को रन करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है लाइक अ फ्यूल, वो फ्यूल कैसे जनरेट किया जाए। और ये सारी चीज़ें हम अभी 1 घंटे के अंदर समझेंगे। जो मेरे पास्ट जो मेरे लाइफ में हुई, जो मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, अर्निंग जो हुई मुझे, फिर मैंने उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया, फिर कैसे मैंने को फंडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं 1 घंटे के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। टाइम बहुत कम है बट मैं चाहूँगा कि उस टाइम के अंदर मैं आपको बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब हम किसी स्टार्टअप की बात करते हैं तो क्या होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि क्रेज़ की स्टार्टअप का मतलब कुछ भी आइडियाज़ को ले लिया जाए और उसे 4-5 लोगों के साथ मिलकर उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। स्टार्टअप बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। अगर आपका आइडिया और आपका जो बिजनेस किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करता है तो इसका मतलब आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। कुछ आइडिया ऐसे होते हैं कि जो कुछ दिन तक चलती हैं, लाइक कि 10 दिन 15 दिन, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होता है, तो उनको स्टार्टअप नहीं कह सकते, उसको हम सोल्यूशन कह सकते हैं। बट जब आप स्टार्टअप की बात करते हो तो आपका एक विजन होना चाहिए कि आप कितना लॉन्ग उसको लेके चल सकते हो, और उसके साथ साथ में कि आप उसको फ्यूल कैसे जनरेट करोगे। सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ होती है स्टार्टअप को रन करने के लिए। और बहुत लोग को लगता है कि जो स्टार्टअप सिर्फ हमने फॉर्म किया और मतलब कि स्टार्टअप के आइडियाज़ के ऊपर हमको फंडिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप अगर कभी भी आप बनाते हो तो जब एक कंपनी फॉर्म करते हो, किसी सोल्यूशन का आप आंसर लेके आते हो, तो जब इन्वेस्टर जब आपको पैसा देता है तो उसके पीछे बहुत लॉजिक होती है। आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। आपके फ्यूचर्स के बिजनेस प्लान क्या है, कितना आपको लॉस होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये सारी चीज़ों का आपको कैलकुलेशन करना ज़रूरत होती है। और जो मैंने सीखा है स्टार्टअप में, एक सबसे बड़ा मतलब ये कि अगर आप देखो कैसा है कि कुछ नया आइडिया आप किसी के पास लेके जाते हो तो पहले तो आपको स्टार्टिंग में या तो कुछ कह देगा कि ये आइडिया चलेगा ही नहीं, करेक्ट है ना, या तो कह देगा कि इस आइडिया का कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि पहले आप ये जान लो कि अगर आपने स्टार्टअप की शुरुआत की है तो लोग आपको हर समय ना बोलने वाले हैं। ये एक चीज़ आप जान लो। एवरी टाइम अगर कुछ भी आप अपने कॉन्सेप्ट को किसी के सामने लेके जाओगे, कोई भी हो, आपका प्रोफेसर हो या आपके कलीग्स हो या आपके पेरेंट्स हो या फ्रेंड हो, वो हमेशा ना बोलेंगे। ये चीज़ का आप ध्यान रखो। लेकिन क्या होता है, स्टार्टअप का मतलब ही होता है कि आप ना को हाँ में कैसे बदलेंगे। अगर मेरे पास मुझे आप फंड लेने आ रहे हो, मुझसे पैसा मांगने आ रहे हो स्टार्टअप के लिए, आपके आपके आइडियाज़ के लिए, तो सबसे पहले आपके एक माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार मैं उसके पास जा रहा हूँ तो ना बोलने वाला है। वो ना बोलेगा ही बोलेगा, करेक्ट है, ना बोलेगा। लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको ना को कैसे हाँ में कन्वर्ट करोगे। तो जब आप ना को हाँ में कन्वर्ट करने की स्किल्स आप में डेवलप होगी ना, तो आप किसी को भी अपने आइडिया को सेल कर सकते हो। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉब्लम के आइडियाज को सेल कर रहे हो, एज अ प्रोडक्ट सेल करो या एज अ सॉफ्टवेयर सेल करो या एज अ सर्विस सेल करो, लेकिन आपको सेल करना है। यानी किसी के माइंड में ना चल रहा हो जिसको लेकर तुमको हाँ में कन्वर्ट करना है। तो जब ये स्किल डेवलप होगी तो तुम्हारे आइडियाज को बहुत ज्यादा लोग पसंद करेंगे। फिर क्या होगा कि फिर इंडिया का सब, फिर जब तुम्हारे जब प्रोडक्ट्स मार्केट में लगना चालू होगा, एक तो क्या होगा कि इंडिया में एक चीज ये होती है ना कि उसने यूज किया है तो मैं भी यूज करूंगा। तो वो एक स्केल, एक नेटवर्क क्रिएट होता है। पहले तो तुमको अपने आसपास के लोगों में वो अपने आइडियाज को लेके, अपने बिजनेस को लेके और रन करवाना होगा। पब्लिक के फीडबैक्स को लेने होंगे कि फीडबैक्स लेने के बाद जब तुमको पॉजिटिव आएगा तो वो सामने वाला देख के ही खुद तुमको बोलेगा। जो उस बिजनेस, अब एग्जांपल के लिए तुम कोई सर्विस, मैं सर्विस की बात करूं तो सर्विस में तुम्हारे पास कुछ थॉट्स आए या कुछ आइडिया है, ठीक है, तो वो सर्विस को अगर तुमने किसी पर्टिकुलर 10-15 क्लाइंट के पास तुमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो छठा क्लाइंट है वो देख के तुमको कॉल करेगा। तो इसीलिए ये होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप स्टार्टअप करने का सोचो तो सबसे पहले आपके में अंदर एक चीज का डेवलप होना चाहिए कि ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपने ना को हाँ में कन्वर्ट करना नहीं सीखा तो आपका मतलब जो बिजनेस है वो चलेगा नहीं, वो नहीं सर्वाइव करेगा।
क्योंकि आप डर रहे हो ना कि यार कि मेरा मेरा आइडिया वो खरीदेगा नहीं, ये प्रॉब्लम की वजह से नहीं खरीदेगा, या ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है जिसका मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं है। तो तुम्हारे अंदर ही बहुत सारे पहले तो नेगेटिव थॉट्स है कि जिसको तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम अपने थॉट्स को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्लाइंट को कैसे कर पाओगे? ये इंपॉर्टेंट होता है कभी भी स्टार्टअप में। तो अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो यार कोई भी स्टार्टअप तुम्हारा कुछ कुछ दिन सर्वाइव करेगा, कुछ दिन तुम्हें पैसे आएंगे, बट उसके बाद तुमको सडनली अपने स्टार्टअप को शट डाउन करके जाना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या होता है कि एक रिकरिंग अमाउंट, लाइक जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुमने कोलकाता से मुंबई की तरफ अगर ट्रैवलिंग करना है, ठीक है, तुमने सोचा कि मुझे कोलकाता से मुंबई जाना है, बाई कार जाना है, तो तुमको मुंबई कोलकाता से मुंबई आने के लिए कार में फ्यूल तो चाहिए ना। अगर तुम्हारे पास फ्यूल नहीं रहेगा तो तुम्हारी गाड़ी बीच में रुक जाएगी। तो यही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि तुमने अगर सोचा कि मुझे अगर मेरे बिजनेस को मुझे उस लेवल तक पहुंचाना है, तो कैसा है कि तुम्हारे पास फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल मनी होना चाहिए। तो उस मनी को तुम कैसे स्मार्टली और कन्वर्ट करोगे, मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट को सेल करके सेविंग करके रिकरिंग अमाउंट मॉड्यूल, लाइक कि मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि अगर 10 किलोमीटर तुमने चला, 10 किलोमीटर में तुम्हारे फ्यूल 5 जो भी वेस्ट हुआ, क्या तुम्हारी गाड़ी ऑटोमेटिक फ्यूल जनरेट कर पा रही है क्या? यानी तुम्हारे बिजनेस से जो एक महीने में जो फ्यूल बर्न किया, क्या तुम्हारा वो नेक्स्ट मंथ आते थे वापस तुम्हारा बिजनेस उस फ्यूल को वापस जनरेट कर पा रहा है क्या? क्योंकि अगर तुम किसी इन्वेस्टर के पास भी अगर फंड मांगने जा रहे हो, तो यानी इन्वेस्टर क्या होगा, पर्टिकुलर तुमको अमाउंट देगा, 5 करोड़ एग्जाम्पल, 1 करोड़, 25 लाख, 50 लाख। तो वो अमाउंट जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा। कुछ समय के बाद तुम्हारा बिजनेस अगर फ्यूल नहीं जनरेट कर पा रहा ऑटोमेटिकली, तो तुम्हारे बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत देखा गया है स्टार्टअप के अंदर। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जो चालू में बंद हुए हैं। बहुत हिस्ट्री तुम अगर आप नेट पे गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप के लिस्ट मिल जाएंगे जिन्होंने स्टार्ट किए और बंद किए। रीजन क्या है कि उनकी बिजनेस जो है ना, पहले तो इन्वेस्टर के अमाउंट पे, इन्वेस्टर ने जो उनको पैसे दिए उस अमाउंट को उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की। लोगों को लगा कि यार इनका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा चल जाएगा मार्केट में, और बहुत ही फिर सडनली ये आता है कि बैंक करप्ट हो गया, बिजनेस बंद हो रहा है। रीजन कैसा है कि उनके पास फ्यूल नहीं है ना। किसी इन्वेस्टर को तुमने अपने आइडिया को पिच करके कुछ उसके फ्यूल को तुमने अपने बिजनेस में तो लगा दिया, बट क्या तुम्हारा बिजनेस वो फ्यूल जनरेट कर रहा है कि उसको बैक भी कर सके और आगे भी लेके जा सके? तो कभी भी अगर कोई भी आइडिया है जब तुम जनरेट कर रहे हो या उसके ऊपर काम करो, तो ये दो चीजों का ध्यान रखो कि पहले तो ना को हाँ में कन्वर्ट करना है, दूसरा मेरा बिजनेस खुद अमाउंट उतना जनरेट करेगा कि मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं बोलूंगा कि वो स्टार्टअप तुम्हारा स्टार्टअप नहीं है, कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए सोल्यूशन है, उसे दो और हट जाओ, उसको आगे मत लेके जाओ कंटिन्यूअसली, अगर तुम्हारे पास उस चीज के आंसर्स अगर नहीं मिल रहे तो। अभी एक चीज का ये लोगों को होता है कि यार कि मेरा आइडिया बहुत बढ़िया है, मैं किसको भी स्पीच करूंगा, सुनने में अच्छा लगता है कि यार सोल्यूशन बहुत क्रेजी सोल्यूशन है, ठीक है, मुझे ये लेना चाहिए, मतलब मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। बट क्रेजी सोल्यूशन कभी भी ये चीज का ध्यान रखो कि वो क्रेजी सोल्यूशन जो भी है वो फंड जनरेट कर रहा है कि नहीं। बिजनेस और स्टार्टअप का दो दो एक ही चीज से रिलेशनशिप है। तो पहला रिलेशनशिप तो ये है कि तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, दूसरा रिलेशनशिप ये है कि तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कुछ उसको अमाउंट को तुम जनरेट कर रहे हो। अगर तुम्हारा आइडिया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लेकिन मनी नहीं जनरेट कर रहा है, तो फिर तुम्हारे वो बिजनेस नहीं है, वो एक सोल्यूशन है। ये चीजों को तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या और सबसे बड़ी चीज, इन्वेस्टमेंट जो है, वो इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलती किसी भी कंपनी में कि मतलब कि आइडिया बनाए, आइडिया के ऊपर ये चले ये थॉट करके मार्केट में पिच कर दिया हो गया, ऐसा नहीं। उसके ऊपर मल्टीपल राउंड्स होते हैं, मल्टीपल सीएफओ। अभी आपको बिजनेस का प्लान बैठोगे तो सीएफओ का लैंग्वेज आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, क्योंकि जो अकाउंट टर्म भी आपको समझना होगा कि किस तरीके से वो बिजनेस प्लानिंग 3 साल का होता है, उसमें तुम्हारे एक्सपेंस और बर्निंग कैसे तुमको मैनेज करना, ये पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो जाकर तुमको फंडिंग मिलती है। अभी एक चीज का ये ध्यान देते हैं कि चलो पहले हम बिजनेस में भी, अगर आप बिजनेस कभी भी चालू करने का सोचते हो, तो बिजनेस है ना 2 तरीके का होता है। एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, या तो फिर सडनली ग्रोथ होता है। अभी ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है कि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए,
बिना पैसे लिए ही मेरे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, मतलब मेरे प्रोडक्ट को लोगों को पसंद आ रहे हैं, मुझसे लोग खरीद रहे हैं, मैं उनको पिच कर रहा हूँ, तो इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हो। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ में हमको कभी भी ट्राई करना कि तुम्हारा जो बिजनेस हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम तो ऑर्गेनिक ग्रोथ ही करोगे। स्टार्टिंग में आज तुमने स्टार्टअप सोचा तो कल को तुमको कोई पैसा देने आएगा नहीं। तो कभी भी एक चीज ये ध्यान रखना कि मेरे बिजनेस को मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ। अब एग्जांपल क्या होता है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं XYZ लाइक फेसबुक, गूगल, ट्विटर और टीवी, पेपर ऐड दे दूंगा, तो ये इन सब चीजों से मुझे क्लाइंट आएंगे और मैं उसे सेल करूंगा और अर्निंग करूंगा। बट तुमको वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी तुमको पैसे लग रहे हैं। क्या तुम्हारा बिजनेस तुम्हें खुद पैसे अगर दे रहा है तो ठीक, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ में काउंट होगा। अगर तुम्हारा इन्वेस्टर तुमको पैसे दे रहा है तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ में काउंट नहीं होगा। तो कभी भी बिजनेस अगर तुम करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक ग्रोथ में कैसे जनरेट कर सको मेरे बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनिक ग्रोथ कर लेता है वही मार्केट में सर्वाइव कर पाता है। अभी एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो तुम्हारे आप अपने इंडिया में आसपास जितने भी दुकानें हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक ग्रोथ पे कर रहे हैं। इनको ना कोई इन्वेस्टर पैसा दे रहा है पहली बात, ना ही ये किसी तरह का मार्केटिंग कर रहे हैं। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को रखे हैं, प्रोडक्ट को कस्टमर आता है अपने आप ऑटोमेटिकली उसको देखता है और परचेस करता है। तो बहुत सारे कस्टमर अपने इंडिया में ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ही चल रहे हैं। तो एक ट्राई हमेशा ये करना कि तुम्हारा बिजनेस का जो भी आइडिया हो, पहले ये देखो कि क्या तुम वो बिजनेस आइडिया ऑर्गेनिक ग्रोथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं कर पा रहा तो तुमको वहां पर रुकना होगा, सोचना होगा और मॉडिफाई करना होगा कि तुम्हारा बिजनेस को तुम कैसे रीमॉडिफाई करो और रीडिजाइन करो कि ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जा सके। अभी बहुत सारे लोगों का मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है कि उनका मोस्टली बहुत सारे ई कॉमर्स की तरफ वो लोग भागते हैं। तो ई कॉमर्स में भी तुमको बहुत देखना होगा कि वो प्रोडक्ट मतलब सिर्फ अपलोड करने से तो होगा नहीं, मार्केटिंग भी बिजनेस का बहुत बड़ा रूल है। बिना मार्केटिंग के तुम्हारे प्रोडक्ट को तुम बेच नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल कि तुमने XYZ जो लोकेशंस पे तुमने कोई बिजनेस को ओपन किया है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तुमने शॉप लोकेशन भी अच्छा है, लेकिन कस्टमर को पता नहीं है, फिर सबसे बड़ा फेलियर जिसको बोलते हैं ना बिजनेस में, फेलियर क्यों होता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ही पता नहीं। जो तुम्हारे कस्टमर है एक्चुअल जो वो परचेस करेंगे उन्हीं को पता नहीं कि तुम्हारा बिजनेस है कहाँ, तुम्हारा लोकेशन क्या है। तो मार्केटिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करती है बिजनेस के अंदर। कभी भी ध्यान दो कि तुमने जब प्रोडक्ट बनाया तो तुम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे रीच कराओगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर से तीसरे कस्टमर तक पहुंचे। अगर तुम ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि लोगों को तुम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं पा रहे हो। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम बैठ जाओगे और सोचोगे यार कि मेरा बिजनेस ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, तुमने इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ऑफिस रेंट पे ले रखे हैं, तुम्हारा सर्वर का कॉस्टिंग ज्यादा होगा, वो रिकर ही नहीं हो रहा है, मतलब उसके पैसे ही नहीं आ रहे, तुम्हारे सिर्फ लॉस हो रहा है, नहीं तुम्हारी बर्निंग हो रही है, तुम्हें फ्यूल वापस नहीं मिल रहा है। तो ये जब भी अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के आइडिया अगर अच्छे हैं तो ये चीज का ध्यान रखो कि मतलब कस्टमर तक कैसे पहुंचे। क्या होता है कि अभी अगर मैं एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करूं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट में मोस्टली ये होता है कि उनको प्रोडक्ट बनाना बहुत अच्छे से आता है, वो सॉफ्टवेयर अच्छे से डेवलप कर लेंगे, वो हार्डवेयर अच्छे से डेवलप कर लेंगे, अगर लेकिन जब मैं बात करूं उसको सेल कैसे करने की तो उनको आइडिया नहीं होता। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अच्छे अच्छे आइडिया है बट उनको फिर कुछ दिन के बाद मार्केट में दिखते ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, कि जो मेरा आइडिया है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वो मैं कस्टमर तक कैसे लेके जाऊं। आज हमारा जो ऑटो पार्क है, आज ऑटो पार्क के साथ में इतने गवर्नमेंट का एसोसिएशन है, टाटा का एसोसिएशन है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे प्रोडक्ट को एक लेबोरेटरी तक या एक छोटे एरिया तक नहीं रखा, हमने लोगों को बताया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम कैसे काम करते हैं, हमारा किस चीज पे सोल्यूशन है। हमारा डेली टारगेट होता है कि हम कम से कम 20 से 25 लोगों को बताएं कि भाई कि हमारा प्रोडक्ट है क्या, और एक्चुअल उन लोगों को जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब कि मार्केट में उतर गया और मतलब एक स्पीकर लगा लिया और चलते बैठ रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं होता। तुम्हें ये पता करना होगा कि तुम्हारे टारगेट ऑडियंस क्या है, तुम्हारे टारगेट ऑडियंस को, तुम्हारे कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा, तो तुम्हारा जो स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो एक टाइम के आके और तुमको बंद ही करना पड़ेगा। तो
जिस तरीके से बिजनेस को बिजनेस स्टार्ट करना आसान है ना, उस तरीके से उतने ही जल्दी बिजनेस में क्लोजर भी आता है। अगर तुम चीजों को ध्यान से नहीं रखोगे, देखो ध्यान तो दो ही चीजों का रखना होता है, एक तो फ्यूल कैसे जनरेट करें, एक तो फ्यूल कैसे बर्न करें। तुम फ्यूल अच्छा जनरेट कर रहे हो और फ्यूल तुम बर्न कहीं भी चीजों में कर रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे फालतू फ्यूल में बर्निंग हो रही है। तो फिर तुम और दूसरे एक्टिविटीज में कैसे उसका इन्वेस्टमेंट करोगे। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो फैक्टर तुमको ध्यान देना होगा जब भी तुम स्टार्टअप को स्टार्ट करते हो। देखो पहले बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एक ये होता है कि अरे मेरे प्रोडक्ट को बनाने में इतना कॉस्ट लगेगा, इतने पैसे लगेंगे, मैं आइडिया उसको कैसे चालू करूं, मैं स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करूं, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पहला जो बिजनेस है वो 500 रुपीज का था, और आज हम लोग सॉफ्टवेयर 30 लाख का 45 लाख रुपीज का एक सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, एक हार्डवेयर सेल करते हैं। तो 500 टू अगर 40 लाख तक पहुंच सकता हूँ तो ये आपको बता सकता हूँ कि यार कि पैसा रुकावट नहीं होता। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है, लग रहा है तुम्हारा दम है, तो तुमको तुम्हारा फर्स्ट क्लाइंट ही तुमको पैसा देगा उस प्रोडक्ट को और डेवलप करने के लिए और आगे लेके जाने को। मैंने वही कहा ना कि देखो अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है, तुमको पास पैसे नहीं, लेट्स टॉक विद द क्लाइंट, उसके ना को हाँ में कन्वर्ट करो। मैंने जैसे ही कहा कि तुम ना को हाँ में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब तुम प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हो। तो तुम अगर अपने क्लाइंट को बोलोगे कि सर ये प्रोडक्ट है जो आपका ये सोल्यूशन है, बट देखो स्टार्टअप का मतलब हर सबको पता होता है कि अभी इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके पास फंड नहीं है, इसको फंड की जरूरत है, ठीक है। क्लाइंट से डायरेक्टली बात करो कि सर मेरे पास फंड नहीं है लेकिन मेरे पास सोल्यूशन है, मैं आपके सोल्यूशन पे अच्छे से वर्क कर सकता हूँ, मैं आपको अच्छा आंसर दे सकता हूँ, बट मुझे XYZ अमाउंट चाहिए इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो कस्टमर तुमको खुद ब खुद XYZ अमाउंट देगा, फर्स्ट कस्टमर, जिससे तुम्हारा वो डेवलपमेंट होगा और तुम उसको मार्केट में बूम करोगे। जब मार्केट में तुम बूम करना स्टार्ट करोगे तो तुम नेक्स्ट एक के बाद एक तुम डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दोगे आइडियाज को। तो ये सारी चीजें हैं उनको जो ध्यान रखना है जब तुम स्टार्टअप स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी तुम बिजनेस का आइडिया को मार्केट में लेके आते हो। और मैं वापस से रिपीट करूंगा कि देखो अगर जिस तरीके से तुमने अभी समझो कि कस्टमर से पैसे ले लिया और तुमने अपने स्टार्टअप आइडिया को रन कर दिया, चालू कर दिया, तो एक चीज का ये ध्यान रखना कि जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल कि देखो अभी क्या होता है कि अगर तुमने हार्डवेयर सेलिंग का तुमने कोई तुम्हारा प्रोडक्ट है जो हार्डवेयर सेलिंग बिजनेस के अंदर है कि तुम सोच रहे हो कि इसका मैं हार्डवेयर को सेल करूंगा और फंड जनरेट करूंगा, तो क्या होगा कि तुमको हर महीने क्लाइंट नहीं मिलेंगे कि जिसको तुम सेल आउट कर पाओगे। कोई तो एक ऐसा महीना जाएगा जिसमें तुम्हारा वो महीना खाली रहेगा। तो वो तुमको ये सोचना है कि अगर मैं मेरा बिजनेस है तो अगर उस बिजनेस को मैं किस तरीके से रिकरिंग मॉडल में कन्वर्ट करूं कि अगर बाय चांस किसी मंथ में, अगर अभी एग्जांपल के लिए कोविड के सिचुएशन बोलूं, अभी इतना लॉकडाउन हुआ, मतलब 6 से 7 महीना पूरा इंडिया बंद था। अगर देखो जिस बिजनेस ने भी रिकरिंग मॉडल पे अपने बिजनेस को लेके गए होंगे वो कभी भी तुमने नहीं सुना होगा कि वो शट डाउन हो गए या बंद हो गए होंगे। वही बिजनेस बंद हुए हैं जो डिपेंड थे डेली सेल्स के ऊपर, मतलब जो लेबर वर्क है। लेबर वर्क कैसा कि अगर उसने अगर डेली वर्क नहीं किया तो उसको पैसा मिलेगा नहीं, तो उनको सर्वाइव करना पड़ा। बट वो जो दुकानें हैं जो जो जैसे जो कपड़े के मॉल्स के हैं, मूवी थिएटर है, जिनको पैसे, उनको डेली अगर शो चलेगा तो उनको पैसे आ रहे हैं तो उनको सर्वाइव करना पड़ा। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी अगर तुम डेवलप करो बिजनेस तो ये ध्यान रखो कि तुम रिकरिंग मॉडल कैसे सेट कर सकते हो कि अगर किसी महीने या किसी भी रीजन से तुम्हारे या तुमको क्लाइंट नहीं मिले या तुम्हारा बिजनेस बंद रहा तो तुम कैसे उसको सर्वाइव कैसे करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि तुम बिजनेस प्लान बनाने बैठो तो बिजनेस प्लान बनाते समय तुम 3 चीजों का ध्यान रखो कि ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्यूल कैसे बर्निंग करना है, रिकरिंग मॉडल को कैसे सेट करना है। देखो ये जो तुमको मैं फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, जो अभी तक 3 चीजों को मैंने जो डिस्कशन किया, इन्वेस्टर भी तुमको यही चीजें पूछेगा। कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा पहला चीज ये पूछेगा कि आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, कॉन्सेप्ट होने के बाद तुमको पैसे की कितनी जरूरत है, तुम पैसे बर्न कितना करने वाले हो, तुम पैसे बर्न करने के बाद पैसा जनरेट कितना करने वाले हो, कल को मैंने पैसा देना बंद किया तो तुम्हारा पैसा वापस से कैसे जनरेट करोगे, मतलब तुम्हारा ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होगा। ये सब चीजों का उसको आंसर चाहिए होता है। जब उनको ये सब चीजों का आंसर मिल जाता है, मतलब जब वो बिजनेस प्लान आपका देखते हैं तो बिजनेस प्लान में अगर उनको ये सब आंसर दिख जाता है तो तुरंत के तुरंत आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
अगर तुम ये सब जो क्वेश्चंस के आंसर अगर ये देने में फेल हो रहे हो, मतलब तो फिर तुम्हारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर या तो तुम दोनों तरीके से बोलो, या तो इन्वेस्टर के पैसे से बोलो, या तो तुम्हारे ऑर्गेनिक ग्रोथ से बोलो, दोनों के अमाउंट से तुम ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो ये चीज का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे, मतलब मैं जो जब तुम बिजनेस प्लान बनाते हो तो तुमको एक स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, हर प्रोसेस को, हर चीज कैसे करनी है। ये नहीं कि बनाया, डेवलप किया, मार्केट में लॉन्च किया, बेचा, ठीक है, वापस नहीं हुआ तो घर पे आके बैठ गए। नहीं, स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि तुम किसी प्रोडक्ट को अभी स्टार्ट कर रहे हो और उसको तुम एक बिग मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उसको ग्रोथ करने वाले हो। एक ट्री तुमने प्लांट किया है, तुमको उसको दिन रोज पानी देना, वो एक बड़ा पेड़ बनने वाला है। अगर तुमने एक दिन दिया और 10 दिन नहीं दिया तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो ये चीजों का तुमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि तुम पहले तो जब भी कोई भी बिजनेस है, जितना हो सके तुम्हारे जो टारगेट ऑडियंस है उनसे मिलो और उनको बताओ। नहीं बताओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना। कि चलो आज तुमको ये एक दिखा, ये आइडिया कि आसपास के सराउंड में ये 4-5 लोग हैं जो लेने वाले हैं, चलो तुमने वो 4-5 लोगों को दे दिया, तो नेक्स्ट टारगेट ऑडियंस कौन है तुम्हारा? आप समझे? तुमको अगर तुम्हारा टारगेट ऑडियंस ही नहीं मिल पा रहे तो तुम सर्वाइव कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट है कि तुमको पहले तो क्या, स्टार्टिंग में जो 1 साल होते हैं वो सर्वाइव का पूरा समय होता है कि उसको ग्रोथ करना है, उसको बहुत बड़े लेवल तक लेके जाना है। तो फ्यूल एक होता है ना कि जैसे कोई अगर हम इवेंट करते हैं तो इवेंट में जो ट्रेजरर होता है उसका काम होता है कि पैसे को पूरा मैनेज करना। तो ऐसे ही तुम्हारे स्टार्टअप में तुम्हारा फ्यूल जो होगा, अगर तुम्हारे ट्रेजरर है तुम्हारे पास लेकिन उसके पास फ्यूल ही नहीं है तो वो बर्न करने के लिए तुमको देगा क्या? तो वो चीजों को तुमको ध्यान देना पड़ेगा, तो ही जगह तुम्हारा स्टार्टअप जो है सक्सेस होगा। हेलो मैडम, आवाज नहीं आ रहा। Hello, sir. I would like to ask one question, sir. Sir, what was your strategy on before opening your venture, sir? देखिए कैसा है कि सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी ये होता है ना कि अगर आप जब बिजनेस स्टार्ट करो तो ये 4 जो क्वेश्चंस हैं, पहले तो आइडिया मार्केट में चलने लायक है कि नहीं। इसका आंसर मिल गया यस कि आइडिया से ग्रोथ हो सकता है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है। मतलब पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका। अब दूसरा क्वेश्चन ये देखना है कि तुम्हारे आपके टारगेट ऑडियंस कितने हैं, कितने दिन तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है। चलो आपको मालूम पड़ेगा कि पर्टिकुलर ये इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरा सर्वाइवल हो सकता है। अब तीसरा ये होता है कि तो आप उस बिजनेस से रिकरिंग मॉडल आप जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, आप रिकरिंग मॉडल जनरेट हो रहा है मेरा हर महीना, तो फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। और फिर फोर्थ ये है कि आपको उसको कस्टमर को एक्वायर करने में आपको खर्चा कितना आ रहा है। Okay. Sir, one more question, sir. Sir, recently you have innovated new project, parking lot vehicle management system. Yes. Sir, how did you initiate that project? कैसे है ना कि जब ऑटो पार्किंग या फिर पार्किंग मैनेजमेंट जो एप्लीकेशन ने स्टार्ट किया, तो ऐसा हुआ कि एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो मैंने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के लिए मैं काम कर रहा था। मतलब मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ। तो हमने कैसे उनके लिए एनपीआर कैमरे के लिए मैंने काम स्टार्ट किया। तो मुझे ये मिला ऑर्डर कि जितने भी पार्किंग लॉट्स हैं उनको उनको सबको एनपीआर कैमरे से सेंट्रलाइज सर्वर पे कनेक्ट करना है और उनका डेटा आना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि जो मिलिंद ब्रह्म कमिश्नर थे वो ये रिटायर्ड हो गए उस समय। तो मेरा प्रोजेक्ट है उस समय रुक गया थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैंने पार्किंग के डोमेन्स को और स्टडी करना स्टार्ट किया कि पार्किंग डोमेन है क्या। तो मुझे मालूम पड़ा कि पार्किंग डोमेन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको उसमें कोई भी अभी तक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज है ही नहीं। तो फिर हमने धीरे धीरे उसका एप्लीकेशन बनाया, उसका बुकिंग बनाया। आज स्मार्ट सिटी में जो कमांड कंट्रोल होता है उन कमांड कंट्रोल में पार्किंग मैनेजमेंट के लिए हमारा सोल्यूशन जा रहा है। हम आज पूरा मैनेज कर रहे हैं कि कितना ट्रैफिक पार्किंग में आया, कितना ट्रैफिक गया। आप ऑनलाइन बुकिंग से लेकर आप अभी जो कोविड के टाइम पे जो ये सोल्यूशन था कि फास्टैग जो टोल्स नाका पे चलते थे, तो अभी फास्टैग सोल्यूशन को हम पार्किंग में भी लेके जा रहे हैं एनपीसीआई के हेल्प के साथ। तो उसमें कैसा था कि हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्टार्टिंग में तो हमने ऑर्गेनिक ग्रोथ की,
ठीक है। ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के बाद फिर हमको फंडिंग वगैरह सब भी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वही है कि पहले आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टर भी ये देखता है ना कि आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ कितना की है। क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं की है तो फिर आप उसका जो पैसा आपको देगा वो भी आप बंद कर नहीं पाओगे प्रॉपर, और उसका पैसा आप वेस्ट कर दोगे। So, but it was really a great initiative. I mean, new concept था parking lot ecosystem का सर. And so recently, I know कि आपने कोलकाता स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. तो सर आप इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे स्मार्ट सिटी पर आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? कोलकाता का नहीं देता हूँ मैं आपको, मैं भोपाल का देता हूँ। कोलकाता का भी मेरा चल रहा है, तो उसको मैं नहीं ओके भोपाल सर. का आपको बताता हूँ। और भोपाल में कैसा हुआ कि एक सेंट्रलाइज सब अपनी बिल्डिंग होती है, कमांड कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। तो अभी इसमें यह है कि जो आसपास के जो ट्रैफिक्स है, ठीक है, उनको पता करना होता है कि हमारे पार्किंग लॉट्स कितनी स्पेस खाली है, कितने भरे हैं, कितने एक्वायर्ड हुए। तो जो हमारा सोल्यूशन है ऑटोमेटिक ऑटो पार्क इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम, तो ये जितने भी व्हीकल्स अंदर जाते हैं पार्किंग, वो सबको एनपीआर कैमरे के थ्रू काउंट करता है, उनका टिकट जो है ऑटोमेटिक देता है। अगर फास्टैग होगा तो फास्टैग के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। वो हर एक व्हीकल का नंबर प्लेट वाया कैमरे के थ्रू निकाल के हम स्टोर करते हैं, फिर हम कमांड कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग में भेजते हैं कि XYZ लोकेशन पे इतनी गाड़ियां आई हुई हैं और इतनी गाड़ियां सेव्ड हैं, अब इतनी गाड़ियां निकल चुकी हैं, ये ट्रैफिक फ्लो है, इतना स्पेस खाली इतने फ्लोर पे। तो ये होगा कि कभी भी अगर फिर नियर बाय जो भी पब्लिक है उसको कुछ बुकिंग करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग कर सकता है। तो इसमें यह है कि अगर कुछ ये है कि अभी समझो कि कोई सिटीज में कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो गवर्नमेंट को ये पता है कि उसके पास फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो कैसे राउट करना है और कहाँ पे लेके जाना है, किस पार्किंग को कहाँ पे लेके जाना है, क्योंकि सारा डेटा उनका एक कमांड कंट्रोल सेंटर में आ रहा है। Oh, great sir. सर आपको फंडिंग के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ा था? बहुत फंडिंग तो बहुत I mean sir, you have got so many fundings. सर एक आगे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना जिसमें आपको काफी मतलब दिक्कत हुई बट एट लास्ट यू फाइनली गॉट दैट मच फंडिंग. देखो मेरा पहला फंडिंग जो मेरा फैसल के लिए हुआ था 15 लाख रुपए का, सबसे स्टार्टिंग वाला एकदम छोटा फंडिंग था। तो मैं वो बता रहा हूँ उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो हुआ था। उसमें ऐसा हुआ था कि हमको तो पहले अप्रोच करना कि मतलब कि लोगों के पास पहुंचना कि ये आइडियाज के लिए हमको ये फंड चाहिए, XYZ अमाउंट चाहिए। तो जस्ट लाइक कि बहुत सारे जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो वो अपना ही प्रोडक्ट आप पे बेचने को चालू कर देते हैं। एंजल इन्वेस्टर आपकी बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आप हमारी सर्विस ले लो, 25,000 रुपये हमारा ये है महीने का। या फिर कुछ ऐसे एंजल इन्वेस्टर आएंगे, आपको बोलेंगे कि आप मुझे जब आपको इन्वेस्टमेंट दिलाऊंगा तो 3 से 4% का मुझे वो चाहिए, पैसा चाहिए। तो जो एंजल इन्वेस्टर आपको फंडिंग दिलाने की जगह में वो अपने प्रोडक्ट ही आपको सेल करना चालू कर देते हैं। तो वो आपके लिए मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी उस समय से गुजरेंगे, दौर से गुजरेंगे जहाँ पे एंजल इन्वेस्टर को अपने प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करेंगे। तो उस चीज़ों पे ध्यान में देखते हुए आपको ये देखना होगा कि पहले तो जो इन्वेस्टर है उन तक अपने पिच को पहुंचाना, जो आपका डेक होता है। देखिए क्या होता है, दो दो डेक होता है। पहली बात तो एक तो होता है जो प्रोडक्ट डेक होता है जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है कि आपका प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। दूसरा होता है पिच डेक। पिच डेक में क्या होता है ना कि उसमें आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्ट के बारे में साथ साथ में आपका पूरा अजम्पशन मेंशन होता है कि आपके मार्केट रेट क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ग्रोथ क्या चल रहा है, ठीक है। आप किस टाइम पे कितने आप मतलब आप ये सोच रहे हो कि मुझे इतने फंड मिलेंगे तो इतने लेवल तक इतने समय पहुंचूंगा, तो वो सारा का सारा उसके अंदर मेंशन होता है आपके पिच डेक के अंदर। तो अभी क्या था, बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल डेक होता है, वही सिंगल डेक को समझते हैं ये हमारा पिच डेक भी है, ये हमारा प्रोडक्ट डेक भी है। बट प्रोडक्ट डेक अलग होता है, पिच डेक अलग होता है, वो आपको इन्वेस्टर तक लेके जाना पड़ता है। तो इन्वेस्टर जब आपके पिच डेक को देखता है तो फिर जब देखने के बाद क्या होता है कि एक डिसीजन मेकर अलग होता है और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने वाला अलग होता है। फिर आपके उनके CFO के साथ में बहुत सारे राउंड्स चलते हैं, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं कि आपने ये जो अजम्पशन लिया, क्योंकि कैसा होता है पिच डेक का मतलब ही होता है कि अजम्पशन, कि मैं ये अजम्पशन कर रहा हूँ
कि इतना पैसा मिलेगा तो ये चीज होगा, ये चीज होने के बाद मुझे इतना मैं पैसा जनरेट करूंगा। तो सीएफओ आपको आपके पूरे के अजम्पशन के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे। मैं सिंपल क्वेश्चन ये है कि मैं भी किसी को मेरा पैसा अगर दूंगा, यानी एग्जांपल के लिए मैं आपको ही देता हूँ, तो आप भी मैं आपसे भी 10 क्वेश्चन करूंगा ना कि आप अगर ये समझो कि पैसे नहीं आ रहे, अभी फॉर एग्जांपल के लिए पेरेंट ही अगर अपने चाइल्ड को पैसे देते तो पूछते हैं कि भाई अगर तू नहीं कर पाएगा तो क्या होगा। तो उस तरीके से सीएफओ भी आपको बहुत सारे प्लस माइनस क्वेश्चन पूछेगा, और उसके अगर आपने आंसर दे दिए, मतलब जो आपने अजम्पशन किया और उसके उसके कैलकुलेशन में राइट बैठ गए, तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। अदरवाइज आप पिच डेक बनाते बैठेंगे, आपको कुछ भी फंड वगैरह मिलेगा नहीं। सर बेसिकली आप बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। सर आपने कैंपस यस सर, सर आपने कैंपस ऑप्ट करने का नहीं सोचा, मतलब हाउ डिड यू गेट मोटिवेशन टू स्टार्ट एनी वेंचर और स्टार्टअप के लिए? मैडम एक्चुअली मैं इसमें लकी हूँ मेरे कैंपस को लेके, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही मेरा कैंपस, आई थिंक मेरा कैंपस मुझे बहुत सपोर्टिव था। फर्स्ट ईयर से ही मुझे सपोर्ट मिल गया, मतलब फर्स्ट ईयर से जितना जो हमारे स्टाफ थे और उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किए, और मतलब हर बार मुझे स्टार्टअप मीटिंग्स में लेके जाना या फिर कोई इन्वेस्टर्स आना तो उनसे मिलवाना, तो लर्निंग प्रोसेस वहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ। तो फिर धीरे धीरे करके पूरा आज इस पोजीशन पे आके बैठा हूँ। तो कैंपस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट्स, मतलब मेरे किस्मत तो मुझे किया हुआ है, अभी दूसरों के मैं नहीं बता पाऊंगा। सर वी हैव आल्सो इंक्यूबेशन सेंटर एंड इनोवेशन सेल सर, हम लोग भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं एंड वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स अंडर इंक्यूबेशन सेंटर। पार्टिसिपेंट वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन पूछना हो सर से तो वो पूछ सकते हैं। तो तीन क्वेश्चन आया हुआ सर, फंडिंग के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी करना चाहिए, चैट पे क्वेश्चन आया हुआ है। और तो उसका आंसर यही है कि जब आप फंडिंग की स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो आपको ना पहले तो आपको पिच डेक रेडी करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे लोगों को पिच डेक में बताता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होगा पिच डेक क्या होता है, कि उसमें बेसिकली ये मेंशन होता है कि आपके कितने शेयर होल्डर्स हैं, आपकी बिजनेस प्लानिंग क्या है, आपका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, आपको फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस पैसे को कितना बर्न करोगे, ठीक है। उसके उसके वो सारे उस पिच डेक के अंदर मेंशन होते हैं। वो क्या होगा कि आपको पिच डेक प्रिपेयर करना होगा, प्लस आपको अपने पिच डेक के अंदर जो करंट मार्केट सिनारियो है और दूसरे को जो बिजनेस है उससे कंपेयर करके एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के फिर आपको जो इन्वेस्टर लगते हैं या फिर जो एंजल इन्वेस्टर लगते हैं या फिर कोई लग रहा है कि आप इसलिए फंडिंग कर सकता है, तो उस तक अपने पिच डेक को पहुंचाना पड़ेगा आपको। फिर उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा, डिस्कशन राउंड होता है। अभी देखो एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इनके पास इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्ट होते हैं, तो ये लोग यही काम करते हैं कि आपके पिच डेक को लेते हैं, आपके पिच डेक में कंपेयर करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अगर उनको जरूरत लगा तो, और आप फिर वो डेक्स को उन इन्वेस्टर तक पहुंचाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। जब कोई एक इन्वेस्टर आपकी पिच डेक को देखता है, फिर वो उन्हें अच्छा लगता है तो फिर आपकी मीटिंग राउंड चालू होती है। मीटिंग राउंड करने के बाद फिर सीएफओ राउंड वगैरह ये सब बहुत सारे राउंड्स हैं, वो क्लियर होते हैं, फिर आपको फंडिंग मिल जाती है। तो सुभाष मसीह बोल रहा हूँ, प्रोफेसर सुभाष मसीह अभिमन्यु जी। आपने सही बात बताई, हमारे स्टूडेंट्स ये चीज पे इंफॉर्मेशन समझना चाहेंगे कि एक आइडिया तो आ गया उनके पास, बट नाउ व्हाट नेक्स्ट, उस आइडिया को लेके कहाँ जाएं। हम उनको ही बता रहे हैं कि विक्रांत इंक्यूबेशन सेंटर जो है हमारा, हम उनको यहाँ उस आइडिया को ब्रूड करने को प्रमोट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये जो आपने पिच डेक बताया, आई थिंक ये सेकंड स्टेप रहेगा हमारा। करेक्ट, हाँ। आइडिया स्टूडेंट के पास है तो व्हाट नेक्स्ट, वो आपसे जानना चाहेंगे। सर अगर आइडिया अभी स्टूडेंट्स के पास आ गया तो सबसे पहले तो नेक्स्ट जो चीज होती है उसको इम्प्लीमेंट करना। एक होता है कि डिस्कवर करना, मैंने उस आइडिया को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। डिस्कवर करने के बाद होता है कि उस आइडिया को इन्वेंट करना। आपको उस आइडिया को मतलब रियलिटी में लाना पड़ेगा कि ये थॉट्स है,
तो उसको रियलिटी में लेके आ जाए। यही मैं पूछना चाह रहा था, बिकॉज स्टूडेंट के आइडिया तो अभी क्या है कि उसने सोच लिया, अब उसको ऑन कुछ उसको पेपर वर्क करना जरूरी है मेरे ख्याल से, अगर आप हाँ। तो फिर जब सर जब जब ये उसको हमने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिए, तब उसका होता है कि इम्प्लीमेंट करना, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो सर आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो मेरी कंपनी का स्लोगन भी वही है, डिस्कवर इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। मतलब पहले आप डिस्कवर कीजिए, फिर इन्वेंट कीजिए, फिर इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप अपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो आप उसको पिच डेक में कन्वर्ट कीजिए, फिर इन्वेस्टर्स को मिलना स्टार्ट कर दीजिए। तो इन्वेस्टर भी ये देखता है ना कि कहाँ कहाँ आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है, उसका फीडबैक क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि सर कल को मैं आपके पास भी आऊंगा तो आप मुझसे यही पूछोगे कि आपने कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, कस्टमर का फीडबैक क्या है। तो पहला तो ठीक है कि पहले आइडिया तो मेरे पास आ गया, आइडिया को आने के बाद मैंने उसको इन्वेंट कर लिया, फिर इम्प्लीमेंट किया। ये 3 स्ट्रैटेजी है सर जो पूरा बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल सही। अभिमन्यु जी, एक और छोटी सी चीज थी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा। बिकॉज क्या रहता, आइडिया तो बना लिया, अब स्टूडेंट्स क्या आके अटक जाते हैं कि इसके अंदर फाइनेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे लाना, कि किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो उसके आंकड़ों को क्या प्राइम, जैसे आपने बताया था भाई इनकम एक्सपेंसेस आपको देना, एक्सपेंसेस में आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस नोट करना, कैपिटल कितनी लगेगी ये नोट करना, उसके लिए लैंड मशीनरी लग रही हो तो उसको नोट करना। तो इसका कुछ थोड़ा सिंपल बताएं कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, देखिए ये चीज में मतलब ये चीज इसलिए बोलूंगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये हम पढ़ाएंगे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को, लेकिन क्या है तो उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें कि क्या आगे नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप जो है फॉर देम। और सर अगर मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो इसलिए मैं इंजीनियर स्टूडेंट को उनके ही लैंग्वेज में समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर वो पिच डेक बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि उनको समझे कि उनको ये लग रहा है कि मेरा आइडिया 1 साल में इस लेवल तक पहुंच जाएगा, बट उस लेवल तक पहुंचाने के लिए मुझे XYZ अमाउंट की जरूरत है। तो वो XYZ अमाउंट का एक्सप्लेनेशन ही उस पिच डेक के अंदर होता है। ओके हाँ, इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए बच्चों को। यस यस सर, क्योंकि कैसा होता है ना कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास वो CFO मतलब अकाउंटेबल का ज्यादा नॉलेज नहीं होता। हाँ वही हाँ, तो उनको किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइन देनी जरूरी है कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें। ओके यही विक्रांत इंक्यूबेशन सेंटर में हम यही इनको प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई अगर आइडिया आपके पास है तो बाकी उसके आगे के स्टेप्स, रेलेवेंट स्टेप्स हम आपको दे रहे हैं। बरोबर, करेक्ट। जी आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है, आपने बोला अकाउंट्स वाला पार्ट बहुत, कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी है बिजनेस आइडिया को। करेक्ट। Sir, there is a question from Ram Roop Singh, sir. He is asking types of startup areas. Ma'am, can you repeat, please? Sir, he is asking types of startup areas. Types of startup areas. Yes, sir. What are the areas in startups? ये तो इसका कोई आंसर नहीं है मैडम, एक्चुअली आप पूछेंगे तो, क्योंकि स्टार्टअप ये होता है सोल्यूशन के ऊपर वर्क करना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर लाइक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सिक्योरिटी चाहिए, तो आपने सिक्योरिटी के बिजनेस स्टार्ट कर दिए तो वो भी आपकी स्टार्टअप है। तो टाइप्स ऑफ स्टार्टअप का मतलब आंसर नहीं उसका कुछ। अब कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन या आंसर है, वही स्टार्टअप है। सर आपने कहा था कि आपने 500 से स्टार्ट किया, नाउ योर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹40 lakhs, 50 lakhs and in millions. सर वो 500 का क्या स्टोरी है सर? आई मीन जस्ट 500 रुपीज सर। हाँ, वही बताओ। वो कैसा है कि जैसे मैंने कहा कि जब आप ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो ये होता है ना कि पहले तो किसी को नाव में हाव कन्वर्ट करना। जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, मुझे पहले ये था कि नेक्स्ट क्लाइंट को बताने के लिए कि मैंने ये काम किया तो मुझे वो ऑर्डर मिलना जरूरी था। करेक्ट है। तो मैंने उसको ये कहा कि चलो मुझे लॉस में ही मैं आपका ये काम 500 में कर दूंगा, लेकिन कर दूंगा, मुझे ये ऑर्डर दो, ताकि मैं नेक्स्ट लोगों को ये दिखा सकूं कि मैंने ये काम किया है। तो अब उसके वजह से ये हुआ कि जब मैंने वो वर्क जब नेक्स्ट पर्सन को दिखाया तो मैं उसमें उसको 500 तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास कस्टमर है, मेरे पास फीडबैक है। तो फिर मैं डिमांड कर सकता हूँ ना। तो पहले ये होता है कि फर्स्ट बिजनेस में एक कस्टमर को लाने के लिए आप लॉस भी हो रहा है तो लॉस को कंसीडर कीजिए, लेकिन उसको पहले कस्टमर बनाइए कि तो वो फीडबैक लेना उससे।
Right, sir. Anyone would like to ask any question? एक एक चीज और अभिमन्यु सर, आपसे छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार एक आइडिया लाते हैं, फाइनेंस नहीं हो पाता, फाइनेंस होता भी है तो फेल हो जाते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करें कि किस तरह से ये एक मतलब पार्ट एंड जो है पार्सल ऑफ बिजनेस है, जैसे आपने बोला ही था फेलियर, बट फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस को आपने किस तरह उसको बनाया लर्निंग, एंड उसको स्टेपिंग स्टोन कैसे बनाया आप? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो पहला बिजनेस था उससे वो इलेक्ट्रो गैजेट था। इसमें ये मेरा बिजनेस जो है वो फेल हो गया था। फेल तो मैं बोलूँगा हुआ, बट लर्निंग मुझे बहुत कुछ वो देके गया, मतलब मुझे बहुत कुछ सिखा के गया। लाइक कि मैंने स्टार्ट किया उसको मेरे, जब मैंने फर्स्ट स्टेज में था, मतलब इंजीनियरिंग के स्टेज में जब मैं था, स्टार्टिंग सेकेंड ईयर में। तो मैंने 4 फ्रेंड्स को मिलके मैंने जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में लगता है प्रोजेक्ट के लिए किट लगता है, आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को किट लगता है। तो मैं सोचा कि उसको ऑनलाइन क्यों ना लेके जाया जाए। ठीक है, ये मेरा एकदम स्टार्टिंग का जब मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैं इंजीनियर स्टूडेंट था, मुझे यही था कि पता कि प्रोडक्ट बना दिया, वेबसाइट बना दिए, चलो अब सेल होना स्टार्ट हो गया, दोस्तों में फैला दिए तो बिकेगा। बट वो फिर क्या हुआ कि 1-2 ऑर्डर्स आए, उसके बाद ऑर्डर्स आना बंद हो गए, क्योंकि प्रोजेक्ट के टाइम चले गए। फिर हम बोल रहे थे यार प्रोजेक्ट के टाइम चले गए, प्रोजेक्ट नहीं बिक रहे, हाँ हार्डवेयर नहीं बिक रहे, क्या हो रहा है। तो समझ में आया कि यार मैंने बिजनेस तो बनाया लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो जब लोगों तक नहीं पहुंचाया तो खरीदेंगे कैसे। तो वो 6 महीने पूरा मतलब ये चला था कि ये मतलब कि क्यों नहीं बिक रहा। स्टडी एनालिस्ट था, डिस्कशन हम मैं भी परेशान हो रहा था कि यार कि बिजनेस हमने बनाया, ग्रोथ हो रहा है, लोगों तक नाम भी पहुंच गए। तो ये एक फेलियर है, मतलब कि आप बिजनेस बना रहे हो, आइडिया है, आपने कुछ लोगों तक दिया है, बट कुछ लोग तक इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको लोगों तक पहुंचाओ। फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर हर मैंने जिस तरीके से आपने हर दिन टारगेट बना, कंपनी मार्केटिंग क्यों करती है, कंपनी पेपर ऐड करती हैं, टीवी ऐड करती हैं, फेसबुक ऐड करती हैं, डिजिटल ऐड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब भी सेमिनार्स वगैरह बहुत करती है, क्यों, क्योंकि उन्हें टारगेट होता है कि मुझे हर दिन नए लोगों को बताना है, नए टारगेट ऑडियंस के पास मेरे प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो जब आपके हर दिन आप किसी नए नए ऑडियंस के पास पहुंच रहे हैं, तो आपका एक साइकिल जनरेट हो रहा है कि जिस ऑडियंस आपने 20 दिन पहले मिले थे, वो हो सकता है कि 30 दिन बाद आपको खरीदने आए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने कभी आपने सोचा होगा कि सर कुछ कुछ आइडिया ऐसा लगता है कि अरे इसमें कुछ दम नहीं है, बट इसमें कुछ भी दम नहीं है, मतलब ये नहीं चलेगा। बट कुछ कुछ आइडिया ऐसा होता है कि जिसमें दम नहीं होने के बाद वो लेकिन बूम बहुत करते हैं, पैसे बहुत जनरेट करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने टारगेट ऑडियंस को रीच कर लिया है। अगर कस्टमर फेल हो रहा है, अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है, तो 2 ही रीजन है, या तो उसके प्रोडक्ट में दम नहीं है, या तो अपने ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पा रहा है। सर एक चीज अभिमन्यु सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, हम यही स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ एक सबसे सही समय है जो इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़ने का या स्टार्टअप का। बिकॉज क्या होता है, बच्चे रुकते हैं कि पहले ग्रेजुएशन हो जाए फिर शुरू करेंगे। हाँ, ये तो है। तो मेरे ख्याल से आपके एक्सपीरियंस से भी ये समझ में आ रहा है कि आपने स्टूडेंट लाइफ में ही ये बात शुरू कर दी थी कि आप ऑलरेडी बिजनेस में कूद गए थे। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई थिंक मार्केटिंग बहुत जरूरी हो जाता है। बरोबर, करेक्ट। अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर लाइक कि आपका इंस्टीट्यूट ही है, अगर उसने स्टार्टिंग से सर बहुत मेहनत किया होगा, जब आपने एक इंस्टीट्यूट चालू किया होगा, तो कुछ स्टार्टिंग में लोगों तक, स्टूडेंट तक पहुंचना, फिर आपके क्वालिटी ऑफ वर्क ने आप आज ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आ चुका है इंस्टीट्यूट। तो उस तरीके के स्टूडेंट्स को भी समझना होगा कि अगर एक इंस्टीट्यूट ऑटो मोड पे आ रहा है, तो मेरा बिजनेस भी कैसे ऑटो मोड पे आए। शुक्रिया सर। ओवर टू यू भावना मैम। यस सर, थैंक यू सर। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, मोस्ट हैपनिंग मोमेंट ड्यूरिंग योर स्टार्टअप करियर। और देखिए मैडम, स्टार्टअप करियर अगर आपने चॉइस किया है अपने लिए, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले आपको ना का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आपने ना का एक्सपीरियंस से भाग रहे, तो फिर आप, मैं कहूँगा कि स्टार्टअप ना करें, आप जॉब पकड़ लें, क्योंकि हर जगह पे आपको ना सुनने को मिलेगा। तो ना को पहले मैं देखो, मेरा एक फॉर्मूला है कि मुझे पता है कि मुझे ना सुनना है,
बट मुझे हाँ में कन्वर्ट करना है। तो ना आपके लिए एक बहुत बड़ा ये है। अभी एग्जांपल के लिए अगर आप आज अपने कलीग्स को बोलेंगे कि मैं टीचिंग छोड़ रही हूँ और मैं स्टार्टअप कर रही हूँ, तो सब लोग पहले यही बोलेंगे यार क्या कर कहा तुम जा रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नई वर्ड सुनने को वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह से शाम तक आपको नई 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 वर्ड मतलब कान में घूमता रहेगा कल के आसपास। फिर उनको आपको ना को हाँ 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 में कन्वर्ट करते फिर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जैसे लाइक मैं पेरेंट्स को बोलूं कि मुझे जॉब नहीं करना है, स्टार्टअप करना, तो पेरेंट्स पहले बोलेंगे बच्चे या तो कोई तो ऐसे गुस्से वाले पेरेंट्स देंगे, चमाट भी मार देंगे, चुपचाप अपना जॉब पकड़। तो ना को हाँ में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। सर पेशेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है स्टार्टअप के लिए। तो सर वो आप उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि यूजुअली जो टीनेज लाइफ रहती है काफी इम्पेशेंट रहते हैं ये लोग। तो इस टाइम पर आप पेशेंस के साथ कैसे स्टार्टअप के बारे में सोचें और मूव ऑन करें, इस पे टिप्स सर। हाँ देखिए क्या होता है ना कि स्टार्टअप जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है कि जब हम फ्यूल जनरेट करना बंद कर देते हैं, अपनी जो बिजनेस है वो फ्यूल जनरेट नहीं कर पा रही है, तो हमारे जो धैर्य रहते हैं ना, कि बोलते हैं ना कि अभी मैं पैशन है, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाता है जब फ्यूल नहीं आता। क्योंकि फिर क्या होता है कि लाइक बहुत सारे स्टार्टअप में फिर बीच में अपने में मोटिव ये डिस्कशन चालू होना स्टार्ट होता है, फिर वो लोग बंद करना चालू कर देते हैं, फिर एक टाइम के बाद पूरा क्लोज ही कर देते हैं। उनको वो समझना होगा कि जब आप स्टार्ट करते हो तो 1 साल या 1.5 साल का जो समय है आपको फ्यूल जनरेट करने में मतलब बहुत ही इंतजार करना पड़ेगा। या तो फिर आप स्ट्रेटेजी उस तरीके से लगाओ कि नेक्स्ट महीने से स्टार्ट हो जाए। लेकिन हाँ, स्टार्टअप में पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर होता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको आने वाले 4-5 महीने के लिए आपको अपने ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आपको मनी बर्न करनी है। और मनी एक ऐसा फैक्टर है ना कि अगर प्रॉपर नहीं अगर क्रिएट होगा ना, तो फिर अपने मन में एक डाउट होना स्टार्ट होता है कि स्टार्टअप को मैं बंद कर दूं। तो ये स्टूडेंट को समझना होगा कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने जो भी है वो आपका मनी बर्निंग पीरियड है, ना कि मनी को गेन करने का पीरियड है। अगर आप कुछ कमा भी रहे हो तो उसको आपको बर्न करना है, ये आप सोच के चलो, क्योंकि आपको ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है। उसमें ऐसा हो सकता है कि 2-3 महीने तक आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिले, लेकिन वो 2-3 महीने आपको अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाओ आप। Any participant would like to ask any question? और मैं बीच में वो करना चाह रहा हूँ बिकॉज कई बार थोड़ा सा मतलब इनके एंड से आ रहा गया। सर फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है किसी बिजनेस में, आप ये बताएं। सर देखिए फाइनेंशियल सर प्लानिंग मैं एक वर्ड और बीच में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्रेक इवन आना। और जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट को ये प्लानिंग ये कैलकुलेशन पहले आना जरूरी कि इतने महीने इनकम नहीं होनी, खर्चा ही होना है। तो ये इनिशियल कैपिटल अमाउंट को उसके अंदर ये ऐड करके आगे बढ़े तो ज्यादा हार्ट ब्रेक कम होएगा। मतलब भाई 1 साल का पहले खर्चा जोड़ लिया इनने कि 1 साल इनकम नहीं होनी है। तो ये वाले पार्ट थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि स्टार्टअप में डे 1 से जो इनकम हो रही है वो इनकम नहीं है, वो रीयूजेबल है, मतलब फाइनेंस वो भी। करेक्ट। तो सर मैं आपको एकदम इनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जब आप इन्वेस्टर्स को आप बोलते हो कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, मतलब पिच डेक में आप एक्सप्लेन करते हो, तो आप अपनी खर्चे नहीं मांग रहे हो उनसे। आप अपने ये मतलब अपनी पर्सनल सैलरी नहीं मांग रहे हो। आप क्या मांग रहे हो कि सर मेरे को ये टाइम से ये टाइम तक पहुंचने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, मैं ये यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, और ये मेरा मतलब कि ये मार्केटिंग कॉस्ट है, ये है, मुझे ये बर्निंग करना है। एग्जाम्पल के लिए आप एक तरीके से कैपिटल मांग रहे हो अपने एक्सपेंस को बर्न कर मतलब रन करने के लिए, या फिर उनके पैसे को जला रहे हो अपने एक्सपेंस को प्रॉपर रन करने के लिए। तो ये चीजें आपको जब आप 6 महीने 7 महीने या 8 महीने आप जो कह रहे हैं सर, क्या होता है ना कि जो आप पिच डेक बना रहे हो वो 3 उसके अंदर वही मेंशन करना होता है कि 3 साल में आपका प्लानिंग क्या है। कि आप तो एक तरीके से आपका बिजनेस में 3 साल अगर आपके पास खुद के पास पैसे है तो आपने अपने पैसों को लगा दिया वो 3 साल के लिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर दिए। या तो अपने वो पैसे इन्वेस्टर से ले लिए 6 महीने के लिए, या अपने पास कुछ भी नहीं है, ना इन्वेस्टर्स है, ना इन्वेस्टर का पैसा है, ना मेरे पास खुद के पैसे हैं। तो मैं किस तरीके से प्लानिंग करूंगा कि मेरे 2 महीने का एक्सपेंस मैं कैसे निकालूं, 3 महीने का एक्सपेंस कैसे निकालूं।
4 महीने का एक्सपेंस कैसे निकालूं, या फिर मुझे टाइम लगने वाला 6 महीने तक प्रॉपर सेटल होने के लिए, तो 6 महीने के प्लान में कैसे मैं अपने एक्सपेंस को निकालूं। उसमें हम सैलरी के बारे में नहीं सोच सकते हैं, हम सिर्फ एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, फॉर लाइक कि अगर मैं कल को अगर मैं आपके पास सर आता हूं कि मुझे आप 20 लाख रुपीज दे दीजिए मुझे ये बिजनेस के लिए, तो आपका पहला ही क्वेश्चन होगा कि क्यों और किस लिए, कहाँ पे यूज करोगे। तो मैं कहूँगा कि सर मुझे 4 एम्प्लॉयज चाहिए, मेरे 4 एम्प्लॉयज के ये 6 महीने के खर्चे ये आएंगे, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसके बाद ये मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर ये मेरे मार्केटिंग से ये क्लाइंट आएंगे, तो वो 12 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 2x होगा या 3x होगा वो। लेकिन 6 महीने, अब इन्वेस्टर के भी क्या करेगा, 6 महीने तक का वेट करेगा। लाइक आप भी वेट करोगे, 6 महीने के बाद मैंने अभिमन्यु को 20 लाख रुपीस दिया, 6 महीने के बाद मैं 25 लाख रुपीस लूंगा। तो इस तरीके से वो इन्वेस्टर भी यही सोचता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए इन्वेस्टर को आप भूल जाओ, ठीक है, इन्वेस्टर को आप भूल भी जाते हो, तो अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे मैंने कहा कि आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपके पास पैसे हैं, यानी पैसे हैं आपके पास कुछ टाइम तक बर्न करने के लिए, आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है बर्न करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है हम स्टूडेंट्स को ना, कि थोड़ा सा टाइम, यानी 1 महीना हो गया, ये 15 दिन हो गया, जो भी टाइम है, स्टूडेंट्स को ऐसे कस्टमर को ढूंढना होगा कि जो मतलब उनके आइडिया या उनके प्रोडक्ट के ऊपर अपना टाइम देने के लिए तैयार है। उनका कस्टमर मतलब वो उनके प्रोडक्ट को अपने फैक्ट्री में या अपने शॉप में या कुछ भी, मतलब जिस तरीके का आइडिया है वो वहां पे यूटिलाइज करने के लिए रेडी है, और उसके लिए कुछ अमाउंट देने की जरूरत है। तो फिर क्या होगा कि उसने XYZ अमाउंट दे दिया, बोला कि चलो जो मेरा ये आप आपके प्रोडक्ट को मेरे शॉप में लगाओ, मैं आपको इतना देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, उनको उनका फर्स्ट स्टेप सक्सेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही अमाउंट, जो भी अमाउंट मिला वो उसको नेक्स्ट क्लाइंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 1 या 2 या 3 कस्टमर तक उनको दिक्कत होगा, बट उसके बाद में कैसा होगा, एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा कि कि ये मैंने यहाँ पे यूज किया, कल को वो किसी के पास भी जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल सही सर, इसी चीज में सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, स्टूडेंट के साथ भी। ये इंक्यूबेशन सेंटर विक्रांत ने भी ओपन करा है, और विक्रांत कॉलेज में हम ये प्रोविजन दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि अगर कोई आइडिया होता है तो वो हमारे पास लेके आए, और इंक्यूबेशन सेंटर में आके उसको यहाँ से हम उसको हैच करेंगे, यहाँ से बिजनेस प्लान बनाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। भावना मैम ज्यादा जो है बता पाएंगे इस बारे में। Yes, sir. Sir, we have a idea-based competition जिसमें आप लोग कोई भी आइडिया या फिर प्रोटोटाइप मॉडल जो आपको लगता है, प्लीज कम अप विद द आइडिया, और हम लोग उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स करेंगे। आप लोगों में से भी जो भी जिसका बेस्ट आइडिया होगा हम उसको फंडिंग देंगे। जैसे कि आपको बाहर एंजल इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं, विक्रांत इंक्यूबेशन सेंटर है, आपको फुल सपोर्ट करेगा, आपको पूरी फंडिंग देगा ताकि आप अपने स्टार्टअप की उड़ान भर सकें। And the second and third prize is cash prize जो 3,000 rupees and 2,000 rupees है। तो प्लीज रजिस्टर करिए, 26 दिसंबर 2020 इज द लास्ट डेट। और अगर आपको दूसरी इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो वी विल शेयर पोस्टर विथ यू, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट दी हुई है, आप उस पर चेकिंग कर सकते हैं। Thank you so much, Abhimanyu sir. So it was really informative session. So now I would like to invite Professor Jitendra Singh Dodia sir, Principal Vikrant Group of Institutions, to give vote of thanks to Abhimanyu sir. Thank you, Bhavna madam. Can you hear me? Yes sir. Yeah, good afternoon and Vikrant Pranam to all. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. So on behalf of Vikrant Group of Institutions, the organizing team, and my own behalf, I would like to extend a very big thanks to our today's eminent speaker, Mr. Abhimanyu Yadav sir. Thank you, Abhimanyu sir. You blessed us with your presence and took out a valuable time for your busy schedule. I must mention our deep sense of appreciation for this session. Also, I would like to extend our gratitude and special thanks to the top management for inspiring us for such kind of events. And, I heartily congratulate to the organizing team
for their successful organization of this event, especially Dr. Mamta Meena, moderator of this event, Professor Subhash Masi, Professor Bhavna Lakhani, who is hosting this complete event, and Mr. Abhishek Misra for the technical support. And as no such kind of session can become successful with single person, and the participation. So I would like to thank to all the participants and students for their active participation. I extend a very, very big thanks to all the students. Thank you so much. थैंक यू सर. एंड में मैं कुछ कहना चाहूंगी. राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है. जिसने रातों से ये जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है. See you all for the next time. Stay tuned with us for the next session dated on 26th November 2020 from 2 to 3 p.m. by Ms. Bindu Patel. Thank you all for stay tuned with us. Thank you.